A very good o'clock to all the dear students. Here I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, in today's video we are going to discuss about the structure of the atmosphere. In the last video we discussed about what is the atmosphere and what is its role in sustaining life on the earth, and we found that the atmosphere is very important. So in today's video we will discuss one by one the layers of the atmosphere. Atmosphere can be classified into major layers, namely troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere and ionosphere. Okay, so there are four main layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. But the outer space or the outermost layer of the atmosphere can further be divided into exosphere and ionosphere. Okay, so let us see them and their characteristics one by one. Okay, first of all, troposphere. So this is the layer closest to the earth. Troposphere is the closest layer, means the most lower layer of the atmosphere is the troposphere, and it varies from about the height of troposphere varies from about 8 kilometer at the poles to 16 kilometer at the equator. Means according to the location the height of the troposphere varies, that is from 6 kilometer to 18 kilometers, 8 kilometers to 16 kilometers. Okay, this is the densest layer of the atmosphere. Densest means most particles of or the molecules of the air are contained in this layer, and 99% of the water vapor is also contained in the atmosphere. Okay, is in this layer. So the molecules of air absorb the heat radiated by the earth's surface and keep the earth warm. What happens in the lower layer, that the molecules of the earth the molecules of the air absorb the heat that is radiated by the earth. क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम जो अर्थ होती है वो अपनी हीट को लूज़ करती है, ओके, ड्यू ड्यू टू द रेडिएशन प्रोसेस, और इस हीट को ये एयर की जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर या उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो दैट टू कीप द अर्थ वार्म ड्यूरिंग नाइट जब उसका हीट लॉस हो चुका होता है. ओके, now most of the water vapor and dust particles are found in this layer. This is also responsible for the formation of cloud. इसी layer में सारे clouds form होते हैं क्योंकि इसी layer में water vapor होता है. So this is also called the weather making layer, क्योंकि clouds, water vapor, ये सारे जो factors हैं they are affecting the formation of या changes taking place in the weather. ठीक है, so this is also known as weather making layer. Air in the troposphere thins with altitude. एल्टीट्यूड के साथ जो इसकी थिकनेस है वो कम होती जाती है. द लेयर गेट्स थिनर एंड थिनर. ओके, एंड ऑल्सो देर आर फ्यूअर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अदर गैसेस इन द अपर ट्रोपोस्फियर. जो ऊपर की लेयर है उसमें ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम होता जाता है. ओके, दैट इज़ वाई जब माउंटेनियर्स माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो अपर लेयर में जाने के लिए या हाइट पे जाते टाइम अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. ओके, इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इस लेयर का टेम्परेचर जो है कम होता जाता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी 1000 मीटर ऑफ असेंट. जैसे जैसे हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है. दिस इज नॉन एज द नॉर्मल लैप्स रेट. इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है, द ट्रोपोस्पॉज इज द नैरो जोन दैट सेपरेट्स द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द above layer, that is the stratosphere. Stratosphere जो troposphere के ऊपर वाली layer है उसको troposphere से अलग करने के लिए इनके बीच में एक narrow line होती है, that is known as the tropopause. Okay, now stratosphere, it is the layer of very thin air. नाउ जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो दूर होते जाते हैं और इसलिए जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाती है और जो लेयर है वो थिन या पतली होती जाती है. ओके, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रोपोपॉज टू अबाउट 50 किलोमीटर. इसकी हाइट क्या है, ट्रोपोपॉज से लेकर 50 किलोमीटर अबव तक इसकी हाइट है या एक्सटेंट है. इस लेयर में टेम्परेचर जो है हाइट के साथ बढ़ता जाता है क्योंकि ये लेयर जो है बिकॉज दिस लेयर absorbs the ultraviolet rays of the sun by the ozone present here. ठीक है, क्योंकि इस लेयर में एक ओजोन गैस होती है, एक ओजोन गैस की लेयर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, इस वजह से इस लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और चेंज ज़्यादा होते नहीं है वेदर कंडीशन में. देयरफॉर जो लार्ज एरोप्लेन्स होते हैं वो मेनली ट्रोपोपॉज और लोअर स्ट्रेटोस्फियर में ही ट्रैवल करते हैं. सो इट इज़ अ पॉइंट टू बी रिमाइंडेड दैट द एरोप्लेन्स ट्रैवल इन दी
स्ट्रेटोस्फियर लेयर ऑफ द अर्थ. सो व्हाट इज स्ट्रेटोपॉज? स्ट्रेटोपॉज जो है दैट फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर. स्ट्रेटोपॉज इस लेयर की अपर बाउंड्री बनाता है. ठीक है. द ओजोन लेयर इज अ लेयर विद इन दी, और जो ओजोन लेयर है वो इसके अंदर ही, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर की ही एक लेयर है. ठीक है. दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस के साथ. जो ओजोन लेयर होती है उसमें ओजोन गैस का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है. ओजोन जो होती है दैट इज O3, इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है O3, मीन्स ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन लेयर बनाते हैं. ओके. एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, बट इट इज़ वाइटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स द वेरी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज coming from the sun and reaching the earth. It stops that ultraviolet rays from reaching the earth. लेकिन during few decades, पिछले लास्ट कुछ decades से ये ओजोन लेयर जो है वो सीवियरली डिप्लीट हो रही है या ख़राब हो रही है. इसमें होल्स पाए गए हैं. ओके. छेद हो गए हैं ड्यू टू एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज्ड यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो गैस होती है दैट इज़ यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, एसीज एंड अदर एरोसॉल्स, एरोप्लेन्स एज दी कूलर्स. ठीक है. एज अ नेचुरल कूलिंग एजेंट्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल कूलिंग एजेंट्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है. और जो ये CFC मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब एयर में सस्पेंड होते हैं, ऊपर जाते हैं, तो इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ख़राब करते हैं. ओके. So 1 chlorine atom can destroy around 1 lakh ozone molecules. एक क्लोरीन एटम जब ऊपर जाता है तो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है. तो यू कैन मेक एन आइडिया कि इतना सारा CFC जो हम लोग रिलीज़ करते हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर को कितना नुकसान होता है. ओके. नाउ कमिंग टू द मेसोस्फीयर. द मेसोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्ट्रेटोपॉज टू 85 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. स्ट्रेटोपॉज क्या है? स्ट्रेटोपॉज स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच की लेयर है. ठीक है. जो इन दोनों को सेपरेट करती है, जस्ट लाइक दी ट्रोपोपॉज. ठीक है. तो मीजोस्फीयर स्ट्रेटोपॉज के ऊपर 85 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है. लाइक द ट्रोपोस्फीयर, टेम्परेचर इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो फॉल होता है, गिरता है विद द इंक्रीजिंग हाइट के साथ इस लेयर में टेम्परेचर कम होता है. ओके. और 120 डिग्री सेल्सियस तक, -120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. ठीक है. आइस क्लाउड्स एंड फ्रोजन वाटर वेपर आर फाउंड हियर. इस लेयर में जो मेटेरॉइड्स यूनिवर्स से हमारी तरफ आते हैं, मेटेरॉइड्स आर दी बर्निंग बॉडीज़ ऑफ गैसेस, वो हमारी तरफ आते हैं, वो इस लेयर में जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर. ठीक है. और अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, जो हमें शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देते हैं. ओके. और जो इसमें कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते वो आकर अर्थ को स्ट्राइक करते हैं, एज सच एज मेटेराइट्स की तरह वो अर्थ को स्ट्राइक करते हैं. दिस लेयर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स. ये लेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है. जो आइनोस्फीयर लेयर होती है वो इसी लेयर में पाई जाती है. ओके. एंड द बाउंड्री बिटवीन द मीजोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर, आगे की थर्मोस्फीयर जो लेयर है उसके और मीजोस्फीयर के बीच की बाउंड्री को हम कहते हैं मीजोपॉज. ओके. So thermosphere layer जो है it extends from the mesopause to 690 किलोमीटर. Now it is the most वाइड स्प्रेड लेयर. अब आउटर स्पेस में जाकर ये लेयर जो है वो मिल जाती है. दैट इज़ वाई इट इज़ 690 किलोमीटर्स अबव दी मीजोपॉज एंड कंसिस्ट ऑफ लाइटर गैसेस. इसमें बहुत हल्की गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दिस हाइड्रोजन एंड helium are very hot gases and it absorbs a lot of heat of the sun because it is the outermost layer. तो सबसे डायरेक्ट और सबसे ज़्यादा जो हीट होती है वो इसी लेयर में absorb होती है. ओके. द बाउंड्री बिटवीन द थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर बियॉन्ड इट इज़ कॉल्ड द थर्मोपॉज. ओके. जो थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फीयर, उसके बीच की बाउंड्री को हम कहते हैं थर्मोपॉज. ओके. एक्सोस्फीयर क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट मेनली ऑफ, सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है. द एक्सोस्फीयर मर्जेस विद द इंटरप्लानेटरी स्पेस, और जो एक्सोस्फीयर लेयर है हमारी वो इंटरप्लानेटरी स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है. ठीक है. आइनोस्फीयर एक जोन है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एयर का
जिसको हम आइनोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर में ये होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप हाफ ऑफ द मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के टॉप से, और ये आपका एक्सोस्फीयर के हाफ तक होता है, लोअर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर में हमें एग्जिस्ट करती है। हियर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर ब्रोकन अप इनटू टाइनी चार्ज पार्टिकल्स। एज आई टोल्ड यू कि मेसोस्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम आयंस कहते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और फिर ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेडियो ट्रांसमिशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेचुरल डिस्प्लेज ऑफ कलर्ड लाइट, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, नेचुरल डिस्प्लेज ऑफ कलर्ड लाइट आर कॉल्ड ऑरोराज, अकर इन द पार्ट ऑफ आइनोस्फीयर दैट फॉल्स इन दी थर्मोस्फीयर। सो थर्मोस्फीयर में आने वाले आइनोस्फीयर के पार्ट में ये ऑरोराज अकर होते हैं। ये क्या है, द आयंस इन द आइनोस्फीयर कोलाइड विद चार्ज पार्टिकल्स। जो आयंस होते हैं आइनोस्फीयर में वो चार्ज पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, एमिटेड बाय द सन, जो कि सन से आ रहे हैं, एंड क्रिएट स्ट्रीम्स ऑफ कलर्ड लाइट्स एट हाई एल्टीट्यूड। और बहुत ही ऊंचे हाइट पर लाइट की स्ट्रीम्स निकालते हैं, ठीक है, वेव्स निकलती हैं। द कलर्स अरेंज फ्रॉम, कलर्स की रेंज क्या होती है, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट टू रेड, ऑरेंज, येलो एंड वाइट। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑरोरा। तो ये जो लाइट का एमिशन होता है आयंस और सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स के कोलिजन से, उनके टकराने से, उसे हम कहते हैं ऑरोरा। नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है, जो रोमन गॉडेस है डॉन की, यानी कि सुबह की, उनके नाम पर ही रखा गया है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ नोन एज ऑरोरा बोरियलिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, कीप स्टडिंग टिल देन।